Welcome to today's webinar on nutrition for a stronger life with dietitian Pooja Bhartia. So we all are special, right? Because we all are women, right? And in each and every one's life, we have played a very deep impact, right? Whether a woman is not only a woman herself, but she also brings in a lot of other characters, right? So her family, her friends, her relatives, people who meet around, her colleagues, her her roadside neighborhood. So we women play a very deep impact in each and everyone's life in our in and around us. So when we are the backbone of the society, right? We consider and we have to be very strong from our side. Like, do you believe that? Show me a thumbs up if you believe that. Yeah. Right, we all believe that, right? So when as women, we have to take care of ourselves. The most important thing is you know the food we intake. That gives us a lot of strength, right? It gives us a lot of courage to move ahead in life. So we have a very special person with us who is going to actually, talk about how we should be taking care of ourselves. And when we are saying how we should take care of ourselves, definitely there are a lot of ways, we can take care. We can groom ourselves from outside, but unless and until we intake certain things inside, we cannot be healthy outside. Am I right, Miss Pooja? So Miss Pooja has joined us. She is basically a nutrition and health coaching, basically, and she's going to tell us about how we women should be taking care of ourselves. What are the correct nutrition food we should be taking, or we should be having indeed, so that we can be more strong, we can be more healthy, and we can also, when we are strong, when we are healthy, we will also be helpful to the other people around who are our loved and dear ones. Right, Miss Pooja? Yes, ma'am. Yes. Okay, so I I'll ask you to move ahead. Hello, everyone. Hi. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. This session on balanced diet for working women. I am dietitian Pooja Bhartia and a certified nutrition expert and passionate about helping people achieving in a healthier lifestyle through balanced diet. ये बैलेंस डाइट के बारे में सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि बैलेंस डाइट है क्या. जब बैलेंस डाइट जो हम लोग लेते हैं, एक दिन में एक कौन से फूड का कितना प्रोपोर्शन हमारे रोज के मील में जाना चाहिए, जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम हेल्दी आउटसाइड फ्रॉम विद इन नहीं हो सकते. Okay. A balanced diet means getting the right type and amount of food and drinks to supply nutrition and energy for maintaining body cells, tissues and organs for supporting normal growth and development. तो बैलेंस डाइट क्या हुआ? बैलेंस डाइट लेने से जितने भी नेसेसरी न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस बैलेंस डाइट में, एक दिन के 3 या 4 मील हम जो भी लेते हैं उसमें हमारे बॉडी को क्या क्या जाना चाहिए, कितने अमाउंट में जाना चाहिए. तो यहाँ मैं अमाउंट तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके सेडेंट्री लाइफस्टाइल या मॉडरेट है या आप हैवी वर्कर्स हैं, उसके ऊपर आपकी हाइट एंड आपकी जो भी डेली की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन हमें कौन कौन से फूड डेली में लेने चाहिए फॉर वर्किंग वुमेन, फॉर द चाइल्ड और फॉर हमारे और जो भी लोग हैं उनके लिए. ठीक है, तो ये देखिए, ये आप पिरामिड यहाँ देख सकते हैं, फूड पिरामिड है. ठीक है, इसका सबसे फर्स्ट है कार्ब्स, होल ग्रेन्स. ये आता है कार्बोहाइड्रेट हमको देते हैं. होल ग्रेन्स मीन्स हुए इसमें वीट, ब्रेड, पास्ता एक्सेट्रा, जो हमको एनर्जी देते हैं, जो डेली एक एनर्जी मेंटेन करने के लिए, वर्क करने के लिए हमको नेसेसरी होते हैं. ठीक है, ये जो कार्ब्स होते हैं ये हम जितने अमाउंट में चाहिए उससे ज्यादा भी नहीं ले सकते क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं और हमारा वेट बढ़ता है. ओके, और इसको हम कम भी नहीं खा सकते क्योंकि आप में फिर वो एनर्जी नहीं रहती जिसके चलते आपको इतना दिन भर आप जो वर्कआउट कर रहे हैं वो वर्कआउट आप मेंटेन कर सकें अपना. ठीक है, सेकेंड आया लेग्यूमस एंड सोय, जिसमें ऑल टाइप ऑफ दाल एंड चिकपी, वाइट पीज, ब्लैक ग्राम, ये सारे दाल एंड मीट, एग्स, ये सारे इसमें आते हैं.
ये लेग्यूमिनेसेंस सोयज, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोटीन जो होता है, हमको लेग्यूमिनेसेंस सोय से मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन 20 एसेंशियल अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। तो उसमें से 10 जो है, 10 अमीनो एसिड हमारा बॉडी खुद बनाता है, ठीक है, खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं विद इन। लेकिन 10 हमको आउटसाइड फूड से लेना पड़ता है, 10 अमीनो एसिड। तो कोई एनिमल सोर्स जो है, जैसे आपका एग है, पनीर है, मीट है, ये सारे जो सोर्सेज हैं, इनमें 10 अमीनो एसिड जो हमको बाहर से लेने होते हैं वो एज इट इज पूरे के पूरे मिल जाते हैं। पर जो वेजिटेरियंस हैं उनको ये सोर्स कोई भी फूड से नहीं मिलते, ठीक है। यानी कि 20 अमीनो एसिड जब तक एक साथ बॉडी में नहीं अपने जाते हैं तब तक वो काम स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो प्रोटीन का क्या काम है, रिपेयर का काम है, बॉडी बिल्डिंग का काम है, उसको रिपेयर करने का जो भी काम है वो प्रोटीन का होता है, ठीक है। तो अब हम उसको कैसे करेंगे, तो ये जो ग्रेन्स, ये जो होल ग्रेन्स है, इनमें पाए जाते हैं 9 अमीनो एसिड, एक एब्सेंट होता है, ठीक है। और जो एब्सेंट होता है वो होता है इस ग्रुप में, इसमें भी 9 होता है, इसमें एक एब्सेंट होता है जो पाया जाता है इस ग्रुप में। तो हमको दोनों को कॉम्प्लीमेंट करके लेना होता है। सीरियल्स के साथ पल्सेस का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं जाएगा। Got it. That means according to Pooja, carbs are also very important. कार्ब्स एंड Right. प्रोटीन कॉम्बिनेशन। Carbs and proteins combination is very important. So over here in this chart, she has beautifully explained like what are the things which are actually important on a daily basis for us. Okay, Pooja. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट आर देयर जो हमारी बॉडी में डेली जाने चाहिए। जो मैं बोल रही थी, ये डेली जाने चाहिए हमारी बॉडी में। क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। माइक्रो मिनरल्स में है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, सेलेनियम। विटामिन्स में ए, डी, ई, के, सी, बी एंड वाटर। इसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट कोई भी एक चीज में प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी एक फूड में प्रेजेंट नहीं होता। बहुत टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ फूड है, इसीलिए जो हम लोग को बैलेंस डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है। So it should be, everything we should eat everything. When we were small, when we were young, our parents used to tell us. I remember that you should eat even, pulses. You should eat even vegetables. You should eat even, sometimes we say ghee, oil. It's too much. It's too unhealthy. People say na that oil is too much. Too much food is too much unhealthy. So, but the proportion. I feel the correct proportion, if we are having it in correct proportion, then what happens is we benefit actually. The glow on our skin, it just cannot happen like this. We need to have proper good amount of good fats also in our body, which will help us from our inner self to have this glow on our face. Though my face doesn't have that glow, probably Pooja will help me out. She is glowing, but definitely I need to also take out my time to have the balanced meal. Yes, Pooja. एक्चुअली में ऑयल का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑयल इज वेरी नेसेसरी। दीज ऑल आर मिथ कि ऑयल नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। तो हम लोग को डीप फ्राइड फ्रूट फ्रॉम आउटसाइड नहीं खाना है, क्योंकि वो जो ऑयल होते हैं वो हाइड्रोजनेटेड होते हैं। जो आउटडेटेड ऑयल होते हैं उनको पूरा कंबाइन करके, उनको हाइड्रोजनेटेड करके उसमें वो डीप फ्राई करके देते हैं, जो कि हेल्थ के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए वो बहुत ज्यादा खराब है। उससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी। आपको ऑयल कौन सा यूज करना है, सबसे पहले अमेजन ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है, कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करना है। क्योंकि ऑयल में होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, जो कि आप सब जानते हैं वेरी बैड, कोलेस्ट्रॉल तो एकदम नहीं होना चाहिए, नहीं, उसके बिना कोई काम नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी, कैल्शियम, इज ऑल आर इंटर रिलेटेड, ओके। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो विटामिन डी भी नहीं मिलेगा हमको कैल्शियम भी नहीं मिलेगा, हमको बहुत जरूरी है। लेकिन कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं हो, तो हम ये कौन सा कोलेस्ट्रॉल, तो हम तेल ऑयल कौन सा लेंगे, कोल्ड प्रेस ऑयल, प्लीज नोट इट, ओके। So this is one information she is giving us, that we need to have cold press oil, so not the ones which are cheaper in rate. At Yes. times what happens is, when we go to the market also, we try looking for, and because of advertisements, man god, there are so many advertisements nowadays in the market, in the televisions, and we see there are so many different kinds of oil available. When you go even to the shopping malls, you have seen there are variety of oils kept, but actually which oil is good for you, we do not know. So today Pooja is actually telling us that we should have cold pressed oil. So next time, my dear women, whoever is watching this webinar,
please go for the cold pressed oils. Okay. That's why. Thank you so much, And Pooja. Going ahead. what else our oil, which nutrients in the oil are omega 3, omega 6, vitamin K, vitamin E, ये हमको हमारे ऑयल से मिलते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि कोई भी न्यूट्रिएंट एक ऑयल से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दो टाइप के ऑयल होते हैं मार्केट में, सीड्स बेस्ड और एक होते हैं प्लांट बेस्ड, ठीक है। तो हम लोग को दो टाइप के ऑयल फॉर कुकिंग पर्पस हम लोग को यूज करना है। जैसे आप मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, कानोला ऑयल यूज करते हैं, दीज आर सीड्स बेस्ड ऑयल, ओके। एंड सेफोफ्लावर, सनफ्लावर ऑयल, दीज आर प्लांट बेस्ड ऑयल। तो किसी में omega 3 होता है, किसी में omega 6 होता है। तो आप कुकिंग के लिए फॉर 1 डे आप मस्टर्ड ऑयल में पूरा कुक कीजिए, आप सेकेंड डे सनफ्लावर ऑयल में कुक कीजिए, या आप मॉर्निंग में जो कुक कर रहे हैं वो आप मस्टर्ड ऑयल में कीजिए, शाम को आप जो कुक कर रहे हैं वो आप सनफ्लावर ऑयल में यूज कीजिए। लेकिन कोल्ड प्रेस ऑयल एंड 2 टाइप्स ऑफ ऑयल, ओके। Wow, Please that's keep in wonderful. mind. That's wonderful information which we got. We generally don't do that. At least I remember not doing that. We buy one, a packet of those or 5 liter or those jars of oil, and we keep using that oil continuously across the month, unless and until 2 months, whatever. And we don't even feel like switching on to another oil. So this is one information, nice information that in the morning, which you are cooking one sort of oil, you can shift to the another oil in the second half of the day or for the dinner, so that you have it balanced on both ends. So you get everything on omega 3 also you get, and you have a healthy life. Yes, Pooja. अभी तक आपने देखा वी टेक कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है। अब हम आते हैं मैक्रो मिनरल एंड ट्रेस मिनरल्स में। पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम, कॉपर, आयरन, क्लोराइन, जिंक, इतने सारे जो मैक्रो माइक्रो मिनरल्स है, कोई भी एक फूड में नहीं होता है, ठीक है। हमको कार्ब्स एंड प्रोटीन कहाँ से मिला? सीरियल एंड पल्सेस से मिला, ठीक है। बट ये जो माइक्रो एंड मैक्रो मिनरल्स है, ये हमको मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, सीड्स एंड नट्स से। सीड्स एंड नट्स तो सभी भूले हुए हैं, सीड्स एंड नट्स तो सब नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए सीड्स एंड नट्स हम लोग कब लाते हैं? जब हमारे यहाँ दीपावली आती है, वो भी हम अपने कंजम्पशन के लिए नहीं लाते, गेस्ट के लिए लेके आते हैं, उनको खिलाना है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग को बहुत सारा भी नहीं खाना है कि हमको एक हैंडफुल ऑफ पूरा खाना है। सिर्फ 2 एलमंड, 2 वॉलनट, थोड़े से किशमिश, आप रात में ओवरनाइट इनको सोक्ड कीजिए, और इनको आपको मॉर्निंग में लेना ही लेना है, क्योंकि इनमें कैल्शियम होता है, इनमें जिंक होता है, इनमें कॉपर होता है, इनमें आयरन होता है, कि सबकी अलग अलग, सब चीजों में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये आपको भी कंज्यूम करना है, हमको सिर्फ गेस्ट को नहीं खिलाना है। Okay, so Pooja, I have a question over here. Yes, Now, ma'am. this is what I have been hearing, and it is also my question. Like when you talk about seeds, okay, so and nuts. So I remember, like in the morning, people telling that at night you can have or soaked dates, or in the morning means in the morning empty stomach you probably go for an exercise, or before that you can have some soaked dates, almond, and might be 2 walnut. You can soak it at night, in the next day morning you can have it. But what about people nowadays having too much of chia seeds? People are having too much of, it's here, means I was actually not looking at the screen. कोई बात So नहीं। people are into too much of pumpkin seeds, and lot of different kinds of beautiful seeds I get to see in the market. And what do we do in the morning is, as soon as after brushing, and we have to rush to our office. So what do? We try in the warm milk, we try putting all these things together, and we quickly have it with cornflakes, and we run to the office. So I want to know whether this process is correct or not. प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कौन से सीड्स खाने हैं, बात Okay, है। got it. क्योंकि Yes, आपको seeds we एड have देख to के, have. रील देख के आप तो ले रहे हैं, क्योंकि एक हेल्दी वुमेन या हेल्दी कोई भी पर्सन के लिए कितने भी सीड्स हैं आपको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जितने भी सीड्स हैं, पंपकिन, चिया, फ्लेक्स, सनफ्लावर, ऑल यू कैन हैव आराम से। बट आप इनको ड्राई रोस्ट कीजिए, आप एक जार में पीस के आपने रख दिया, ठीक है। आपने एक स्पून लिया, जब आप ये ड्राई फ्रूट्स जब आप कंज्यूम कर रहे हैं तब आप एक स्पून लीजिए और वाटर के साथ इसको पी लीजिए। आपका तो हो गया, बट आपके बच्चे नहीं खाएंगे, आपके हस्बैंड नहीं मानेंगे, ये क्या खिला रहे हो, नहीं खाना है बोल सकते हैं, ठीक है। बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे, लेकिन हमको तो बच्चों को भी देना है, क्योंकि ये जो है ये आते हैं बैलेंस डाइट में, क्या आपको डेली लेना है। आप उनमें क्या कर सकते हैं, जब आप कोई भी वेजिटेबल बना रहे हैं उनके उस वेजिटेबल में ऐड कर दीजिए। आप उनके लिए जब रोटी बना रहे हैं, चपाती बना रहे हैं, उसके अंदर फिल कर दीजिए, उनको पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है, आप कोई भी वेजिटेबल के ऊपर इनको स्प्रिंकल कर सकते हैं। Got it. कोई भी ग्रेवी वाली जो वेजिटेबल्स है आप उसमें 1 स्पून डाल दीजिए, वो थिक हो जाएगी, ग्रेवी भी थिक हो गई आपकी, और आपने सबके खाने में इसको इंक्लूड भी कर दिया। क्योंकि आप तो वर्किंग है, आपके पास जरूरी नहीं है इतना टाइम है, पहले मैं सीड्स खाऊं, पहले मैं एलमंड वगैरह खाऊं, फिर मेरे को जीरा का पानी भी पीना है, क्यूमिन वाटर भी पीना है, फिर मेरे को फ्रूट्स भी खाना, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो आप ये करिए ना, आप जो वेजिटेबल बना रहे हैं, अगर वो ग्रेवी की वेजिटेबल आप उसमें ऐड कर दीजिए, आप अपने डो में उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये एक आपका जल्दी जल्दी वाला काम हो जाएगा कि ये छूटेगा नहीं फिर आपसे। बस आपको ये करना है, ये सीड्स मंगाइए, इनको ड्राई रोस्ट कीजिए, इनको आप मिक्सी में पीस के आप एक जार में एयरटाइट एकदम सामने रखिए, जहां किचन में आप अपने मसाले रखते हैं ना, ऑल मसाला, वहां पे आप इसको रखिए, तो आपको डेली याद रहेगा कि मेरे को बैलेंस डाइट में ये लेना है मेरे को। Wow, that's wonderful. So, according to Pooja, means she has said a wonderful thing. She has said that in case you do not have time and to eat all these sorts of wonderful seeds, so you can just grind it up, keep it in a jar near your kitchen, wherever you're making sabzi, whatever you're making curry, you can just add in a spoonful of it, so that the nutrients of this goes inside your body. And sometimes even your kids don't want to have it, your husband don't want to have it, so they don't want to get the greenery taste of it. So then what happens is, automatically, indirectly, you are actually giving the children, giving your husband, or giving your family members the important benefits of these seeds, and they do not even realize that. And everyone stays healthy in the family. Even when she said about dough, so the dough which we are making rotis, so in that dough we can put it. That's what you said, Pooja? Yes. Okay. So by making dough also, if you are making chapatis at home, you can also put in the the crushed seeds in that, and you can make rotis also, chapatis also, which actually is consumed very easily by your children or family members at home. That's wonderful. अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, हमारे खाने में हमको फाइबर बहुत ज्यादा लेना होता है। ठीक है, जितनी भी विटामिन्स हैं वो हमको कोई भी सीरियल्स एंड पल्सेस से नहीं मिलता, हमको सारे विटामिन्स हमको मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। ठीक है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फाइबर होते हैं। ठीक है, फाइबर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कॉम के जैसे होता है, कॉम उनका ऐसे, उनका काम है क्लीनिंग करना, इंटेस्टाइन का क्लीन करना, इसलिए हमको फूड में फाइबर बहुत ज्यादा लेना होता है। क्या होता है, जब हम जो भी फूड खा रहे हैं, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके स्टक हो जाता है, तब उसको कौन निकालेगा, उसको फाइबर निकालते हैं। ठीक है, तो हमको खाना खाने के पहले कोई भी मील, चाहे हमारा ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, उसके पहले हमको फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, प्लेट 1 प्लेट 2, ब्रेकफास्ट के समय आप लंच ले रहे हैं प्लेट 1 प्लेट 2, डिनर ले रहे हैं प्लेट 1 प्लेट 2। लंच एंड डिनर में आप क्या लेंगे, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स। ठीक है, एंड आप सुबह के ब्रेकफास्ट में आप ऐड कर सकते हैं फ्रूट्स विदाउट पीलिंग। अब वर्किंग वुमेन है, उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप अपने पर्स में वो फ्रूट्स को कैरी कर सकते हैं जिनको हमको कट करके नहीं खाना होता। फॉर एग्जाम्पल गुआवा, बनाना, एप्पल, इनको आप आराम से घूमते फिरते काम करते हुए आराम से आप खा सकते हैं, तो ये आपको खाना है। लेकिन जो फ्रूट्स वाटरमेलन है, पपाया है, जिनको कट करके खाना है, वो आप अपने ब्रेकफास्ट के पहले, चाहे आप इतना सा ही खाएं, आप एक छोटा बोल भर के खाएं, लेकिन आप फाइबर जरूर लें, ताकि वो इंटेस्टाइन में जाके पहले आपके इंटेस्टाइन को पूरा क्लीन करें, फिर हम जो भी फूड को इंटेक कर रहे हैं वो उसको आराम से डाइजेस्ट होने दें। Okay, so fiber is very important for our health. And what are the like fruits and all which are containing more fiber? So it's like all the fruits contain All the fiber. fruits, all the fruits contain और all fiber. seasonal fruits, not fancy fruits, Okay, all seasonal fruit, जो सीजन के हैं आप वही फ्रूट कंज्यूम कीजिए। okay. So that is good for our health. But sometimes even what happens, we do not have, like, suppose we want to have watermelon. Okay, and we all are, there are many working women who have joined right now, there are many teachers who have joined. We do not get time. Suppose early in the morning we are coming to office or school, and then after the whole day when we reach home, say around 6 o'clock 7 o'clock, we don't feel like having watermelon at that point of time. So watermelon, what many people do is, they chop it,
they carry it in their tiffin box and they bring it to the office, saying that 10 o'clock, when I feel hungry in the morning, then I'm going to have watermelon. Is it good for the health? Please say. Please ये say. आप कर रहे हैं क्योंकि आपको खाली अपना स्टमक फुल करना है, सिर्फ इसलिए आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। फ्रूट्स आप जब, क्योंकि विटामिन देखिए मैं बताती हूँ, विटामिन ए डी ई के फैट सॉल्युबल होता है, लेकिन विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल है। आप जब उसको कट कर रहे हैं तो उसमें से जो वाटर निकल रहा है कोई भी फ्रूट में से, उसका विटामिन पूरा निकल जाता है, पूरा विटामिन। तो आप तो टिफिन में भर के लेके जा रहे हो, वो एटमॉस्फेयर से वो कांटेक्ट में आया, उसके सारे उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिल रहा है, खाली आपका स्टमक फुल हो रहा है। ये आपको आपके लंच, आपका ब्रेकफास्ट के पहले आपको ये एक आदत बनानी पड़ेगी कि जब आपका ब्रेकफास्ट टेबल पे आ रहा है, आप जब ब्रेकफास्ट खा रहे हैं उसके जस्ट पहले आप पपाया या वाटरमेलन, आपको जो लेना है थोड़ा सा एक बोल आप लेके आए। मैं इसीलिए बोली कि जो कट करके खाने होते हैं वो फ्रूट आप घर में करके खाइए, और जो आप एज अ होल आप कंज्यूम कर सकते हैं ना, वो आप फिर बाद में ऑफिस में आप वो खाइए। आपको गुआवा खाना है, आपको एप्पल खाना है, आपको बनाना खाना है, आपको चीकू खाना है, आपको कुछ भी खाना है, आप फिर ऑफिस में वो खाइए। ये आपको थोड़ा सा अपना टाइम मेंटेन करना पड़ेगा इसके लिए, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे। Got it. That's nice. Or there are many women who are sitting over here who are actually cut fruits, chopped fruits in their tiffin box. So next time, please be a little careful. Yes, Pooja. मैम नेक्स्ट कैटेगरी इज वेजिटेबल। ठीक है, दिस इज वेरी नेसेसरी बिकॉज देर आर 3 काइंड्स ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, वन इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रुप ए लीफी वेजिटेबल, ग्रुप बी जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होते हैं, जैसे पपाया, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, टिंडे जो हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो ग्रुप है ग्रुप बी। एंड ग्रुप सी है रूट एंड ट्यूबर्स। ठीक है, तो अब ये जो 3 ग्रुप हैं, ये तीनों ग्रुप में जितने भी वेजिटेबल्स आते हैं वो हमको डेली अपने डाइट में, अपने प्लेट में लेना है, चाहे इतने से की क्वांटिटी में ले, लेकिन डेली लेना है। प्रॉब्लम है रूट एंड ट्यूबर्स तो हम सब खाते हैं, आप अनियन खा रहे हैं सैलेड में, आप पोटैटो सब खाते ही हैं, तो वो ग्रुप में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जिंजर हम चाय में डाल के ले ही रहे हैं, तो इस ग्रुप में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब आया फर्स्ट ग्रुप जिसमें है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल विंटर्स में आसानी से अवेलेबल है, आप लेते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल विंटर्स में। बट आप समझ में क्या करेंगे, तो समझ के लिए एक ही उपाय है इसके लिए कि आप चटनी, कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स की चटनी घर पे बना के रखिएगा। ठीक है, चटनी ऑल नो ग्रीन चटनी। Of course, that's green chutney is one of the most yummy and tasty things, like coriander chutney, pudina chutney. So these are the chutneys which generally, we have seen our grandmothers, our mothers generally, when वो we लोग want to डेली have खाते थे, वो डेली कंज्यूम करते थे, पर हम नहीं करते ना, हमको Yes, पता नहीं है yes. कि क्यों, yeah. क्योंकि हमको पीसना पड़ता है, हमारे पास Yeah, टाइम नहीं है। but Pooja, if you see, at that point of time, they did not have mixer grinders. They had their those mortar and pestle, and they Yes. used to grind it, and Right. that was so tasty. But right now we have the modern equipments. We have mixer grinders, we have hand blenders, we have so many things. We have to just take the coriander, we have to put it in some rock salt or something which makes it a little bit tangy in taste. Grind it, have it with whatever vegetables or chapatis you are having, and actually you are consuming something very tasty and that is healthy. मैम दिस इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी एज वाटर एज, जैसे पानी आपको डेली कंज्यूम करना जरूरी है, ग्रीन चटनी, क्योंकि ये आप विंटर्स में आपको पालक मिल जाता है, आपको बहुत सारी वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको समर में इसके अलावा आपके पास और कोई उपाय नहीं होता। तो चटनी आप बना के रखेंगे। वर्किंग वुमेन जो है वो संडेज को चटनी बना के रखिए विदाउट सॉल्ट। आपको जब Okay. कंज्यूम करना है तब आप सॉल्ट डालिए और लीजिए, तो Okay, वो that खराब means नहीं we होता है। can grind the Yes, you chutney can and keep keep it it at for home. one. हाँ ठीक है। एंड मोरिंगा लीव्स आता है, मोरिंगा लीव्स ऑल यू नो, मोरिंगा लीव्स, मोरिंगा डाठा। हाँ, which many places people call it as munga also, the drumsticks basically. Drumsticks, In English we yes. call them drumsticks. इनके So जो drumstick leaves. लीव्स, इनका पाउडर बना हुआ भी मार्केट में आता है, ड्रम स्टिक के लीव्स के पाउडर भी आते हैं, या आपको अगर कहीं से मिल रहा है आप ड्राई करके क्रश करके रख लीजिए। ये मैम किसी के लिए भी, फॉर वर्किंग वुमेन तो बहुत ज्यादा, फॉर किड्स ऑल्सो, ग्रोइंग किड्स, ये पूरा रॉ कैल्शियम है, ये आप डेली खाएंगे तो आपको कैल्शियम की कभी कोई कमी नहीं होगी, इतना कैल्शियम है। तो आप इसको भी, जो आप पाउडर बना के रख रहे हैं घर पे क्रश करके रख रहे हैं, आप कोई भी वेजिटेबल बना रहे हैं, डो बना रहे हैं, आप उसमें स्प्रिंकल कर दीजिए। Right, because I remember a couple of years back,
people never knew the importance of these leaves and everything. Although, there are people who are having these drumstick, those trees near their houses also. But nobody realizes their importance, And nowadays in the market, if you see, there are boxes and there are, containers which people are selling, and they are doing good business over there because they are selling moringa leaves powders, and which is very healthy actually. So, as you have said, that those crushed powders, we can just put it in our, Any type of vegetable, dry and curry and vegetable, all that, and we can हाँ have. ग्रेवी वेजिटेबल, ड्राइड वेजिटेबल, इन दो एनी, मतलब कैसे भी यूज करना है उसको। आप समर में 3 टाइप्स ऑफ आप चटनी यूज कर सकते हैं, मोरिंगा लीव्स यूज कर सकते हैं, एंड आप ड्राइड मेथी लीव्स यूज कर सकते हैं, कसूरी मेथी, ड्राइड Okay. मेथी लीव्स, वो भी पूरे पैकेट में आता है, ठीक है। तो वो रेडी अवेलेबल है। ये सारी चीजें आप कोई भी वेजिटेबल बनाए आप स्प्रिंकल कीजिए, वो आपके सबके फूड में जाएगा, क्योंकि ये एक बैलेंस डाइट का हिस्सा है। ओके, 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हुए हैं अभी। So fenugreek leaves are also very important. Fenugreek seeds, very important. I have heard people soak fenugreek seeds at night and they have the water. So can you tell me what is the benefit of having this fenugreek methi, the fenugreek पेन seeds? रिलीफ, ये पेन रिलीफ भी है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। Okay. इसमें डाइजेशन की प्रॉपर्टीज हैं, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये हम लोग के पीरियड्स के लिए, जिनका पीरियड्स चल रहा है वो अगर लें, वो क्लियर होता है बहुत अच्छे से। या फिर आपके पेन के रिलीफ के लिए, ये पेन रिलीफ के लिए बहुत अच्छा है। जो मैंने सीड्स वाला मेरा वो है उसमें किया हुआ है, ठीक है। अब आया सेकेंड पार्ट ऑफ वेजिटेबल, जहाँ पे लौकी, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, टिंडे, भिंडी, जो कि सब नहीं खाना चाहते, ठीक है, लेकिन Bottle gourd and all that, many people don't like. Don't So like. definitely we can make. Raw I know papaya. people make even sweet dishes of bottle gourd just to have the taste, but then I don't know how much effective it is. It is very easy to consume these vegetables. सुनिए, आप मॉर्निंग में आप कोई भी एक वेजिटेबल लीजिए जो आपके घर पे कोई नहीं खाता हो। मान लो आप रॉ पपाया कोई नहीं खा रहा है, बॉटल गोर्ड कोई नहीं खा रहा है, बिटर गोर्ड कोई नहीं खा रहा है, ठीक है। आप इनको थोड़े से पानी में आप इनको बॉईल कीजिए, मैश करके आप अपने फ्रिज में रखिए, ठीक है। इनको भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। जब आप डो बना रहे हैं तो वाटर की जगह, पानी की जगह आप इससे डो बनाइए। इसका जो पल्प है ना, उससे डो बनाइए। अब इससे फायदा मैं बताती हूँ। आपको पतला होना है, आपको वेट लूज करना है, ठीक है। आप 3 रोटी 3 चपाती खाते हो, मैं आपको बोलूंगी 2 चपाती, 30 ग्राम आप चपाती खा रहे हो, 30 ग्राम की चपाती। मैं बोलूंगी नहीं नहीं आपको 20 ग्राम खाने हैं, तो आप तो भूखे उठोगे, आपका तो पेट नहीं भर रहा है ना। लेकिन हम उसको 20 ग्राम कैसे करेंगे? अगर हम उस डो को, आप कोई भी वेजिटेबल के पल्प से आप उस डो को बनाते हैं, तो आपका आटा कम हो जाता है, उसकी क्वांटिटी तो कम हो जाती है, क्योंकि आप तो उसको डो उससे बना रहे हो। तो अपने आप ही उससे क्या फायदा है कि जो वेजिटेबल आप ऐसे नहीं खा पा रहे हो, वो वेजिटेबल आपके फूड में आप इंक्लूड कर पाओगे, और आपका इससे वेट लॉस भी होगा। और जो बच्चे, यस, वेट लॉस होगा, क्योंकि अब आप 20 ग्राम खा रहे हो, कार्ब्स आपके पेट में सिर्फ 20 ग्राम जा रहा है। That is amazing. So Yes. these vegetables which Pooja has spoken about, she's talked about bottle gourd, and Pooja, she's also talked about Raw papaya. papaya, yes, raw papaya. papaya is So she very just said to very smash it and beneficial keep for it. लिवर। हाँ, लिवर, फॉर लिवर के लिए बहुत अच्छा है रॉ पपाया, लेकिन सब नहीं खाते हैं मैम, तो क्या Right. करें? Right. तो आप उनका पल्प बनाइए, आप ग्रेवी वाले वेजिटेबल्स में डालिए। आप करी बना रहे हैं, उसमें पूरा 1 स्पून भर के डाल दीजिए, वो थिक हो जाएगा। आप दाल बना रहे हैं, पूरे दिन भर में एक बार शायद आप दाल कंज्यूम करते होंगे, आप उसमें डाल दीजिए। आप दही खा रहे हैं, कर्ड खा रहे हैं, आप उसमें 1 स्पून डाल दीजिए। तो इससे बच्चों को पता भी नहीं चलता है, आपको भी कम मेहनत होगी, क्योंकि आप एक दिन अगर पल्प बना के रख रहे हैं, आप 2 दिन तक आराम से उसको फ्रिज में रख के आप यूज कीजिए, सॉल्ट मत मिलाइए। Okay, got it. So whatever dough you are making, you can put all these smashed vegetables in that, so that that water which it's giving, instead of adding water to the dough, you can add those smashed vegetable waters in in that dough to make a healthy chapati, and automatically the helps in your weight management also. If you are interested in losing down your weight, we girls all want to look slim and trim also. So it's not about how we look, but how much healthy we are. Right. नेक्स्ट इज वाटर। Very ठीक है? important. And मैम I वाटर तो remember- क्या है? हाँ, आप जितने बिजी हो, सबसे पहले हम यही फॉरगेट करते हैं कि हमको पानी पीना है। Right, ठीक है? right. आपको ये मालूम है कि आपको एक दिन में 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर आपको कंज्यूम करना है, क्योंकि वाटर का भी बहुत सारे फंक्शंस है। ये सारे फंक्शंस है वाटर के, तो वाटर तो हमको पीना है, बट कैसे पीना है ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है।
हम कोई भी फूड खाने के बाद, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के एटलीस्ट 1.5 आवर, 1 से 1.5 घंटे के बाद हमको पानी पीना होता है। जैसे ही हम खाते हैं ना, हमारे बहुत सारे जूसेस होते हैं जो हम तो खा रहे हैं, गल्प कर लिए, ठीक है, yes. तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पूरा ग्लूकोज के फॉर्म में लाने के लिए बहुत सारे जूसेस होते हैं जो बॉडी से निकलते हैं और हमारे स्टमक में जाते हैं, उसको पूरा ग्लूकोज बनाते हैं जो हमारे बॉडी में रन करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टूल की तरफ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसको जो काम कर रहा है, जो डाइजेशन प्रोसेस है, उसमें 2 आवर्स लगा मैम। तो आप अगर आप खाने के बाद बड़े मजे से आपने 1 गिलास पानी पी लिया, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, भाई कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, तो वो जो जूस है उनकी जो कैपेसिटी है वर्क करने की, तो 2 या 3% ही हुई। इसीलिए हम लोग को उसको एसिड अपना काम कर सके, हमारा फूड डाइजेस्ट हो सके, इसके लिए हमको कम से कम 1.5 आवर पानी नहीं पीना है। आपसे नहीं रहा जा रहा है, आपको आदत है, तो आपको आदत चेंज करनी पड़ेगी और आप एकदम स्मॉल अमाउंट में सिर्फ थोड़ा सा पानी ले, ताकि आप धीरे धीरे उस आदत, अपनी अपनी जो आपकी आदत है, आप उसको चेंज कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, आपका पेट तो भर गया, आप तो बोलते हैं मैंने खूब अच्छा, आप, मैं जैसे आपको बैलेंस डाइट समझा रही हूँ उसके हिसाब से अपना आपने अपनी प्लेट रेडी की और आपने मजे से खाना खाया, लेकिन आपको तो शाम को आपके तो एनर्जी नहीं है। आपको क्यों? क्योंकि आपका फूड तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ और फिर आपका बेली फैट बढ़ता है, फिर आप मोटे होते हो, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड जो है वो आपके बॉडी में जाके जमा होते हैं। बटर मिल्क इज ऑल्सो नॉट अलाउड विद द फूड। Okay, आप बटर buttermilk मिल्क, is not आप allowed. फूड स्टार्ट करने के पहले, बिफोर आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, दैट इज अलाउड। आप फूड स्टार्ट करने के पहले आप बटर मिल्क ले लीजिए, दैट इज अलाउड, बट नॉट आफ्टर। After. Okay, so buttermilk is also not healthy if you're having it after your meals. So that should be avoided. Okay, tell me something, Pooja. There are many people who have curd at night. Is it a myth? Is it a good thing or a bad thing that we should have curd at night? It's unhealthy. Curd in the afternoon is good for health. So what is it? मैम देखिए, कर्ड का ये है कि कर्ड हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। आप अगर उसको रात में उसको जमा रहे हो कर्ड, और मॉर्निंग में विदाउट फ्रिज में रखे और उसमें बिना सॉल्ट और शुगर ऐड किए अगर आप वो कर्ड को आप कंज्यूम करते हैं ना ब्रेकफास्ट में, सबसे अच्छा टाइम वही है कि आप ब्रेकफास्ट में आप कर्ड लीजिए बिना सॉल्ट और बिना शुगर के, क्योंकि ये हमारे गट हेल्थ के लिए, हमारे गट बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया ये हमको देते हैं। आप उसको रात में आप उसको बना रहे हो, सुबह आपने फ्रिज में उठा के रख दिया, 10 बार आप निकाल रहे हो, 10 बार आप डाल रहे हो, तो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। So breakfast is a good time to have curd. Well, I did not know this. So as it is, I love curd. That also without sugar, without salt. I actually love curd. So I think there are many women over here who was confused probably when is the correct time to have curd, and she's explained the reason also, that if we are having curd in the afternoon or at night, then repeated, what we do is we take out the curd from the fridge, again we are having it and keeping it back. So because of we are losing on good bacteria. मैम अब आते हैं नेक्स्ट, जो है वो है आपका चाय एंड कॉफी। Okay, that's a very vital thing. दैट इज। तो मैम चाय एंड कॉफी तो सभी को चाहिए, क्योंकि भाई हम तो वर्किंग हैं, हम काम कर रहे हैं, हम थक गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा चाय ले लें, थोड़ा सा कॉफी ले लें, ठीक है, इट इज ओके, ठीक है। बट अगर हम ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेते हैं, बहुतों की आदत होती है, हम दिन में लंच कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, भाई चाय ले आओ, हम तुरंत लंच किया, हमने तुरंत कॉफी ले ली, हमने चाय ले ली, तो चाय एंड कॉफी में कैफीन एंड टेनिन पाया जाता है, ठीक है। कैफीन एंड टेनिन होता है जो कि अगर आप किसी के साथ अगर उसको खा रहे हैं, तो वो जितने भी न्यूट्रिएंट उस फूड में है वो किसी को भी एब्जॉर्ब होने नहीं देता। Okay, so immediately in the morning, that we people think that green tea is also good for health. Yes, yes, green tea we can have it in the morning. यस, ग्रीन टी यू कैन हैव, लेकिन बस वही है कि खाने के 2 घंटे बाद, Okay, क्योंकि है तो got it. वाटर ही ना मैम, है तो वाटर ही, तो आप Water ही। खाने के 2 घंटे के बाद उसको लेंगे तो उसका आपको फायदा Benefits, मिलेगा, हाँ। बेनिफिट्स मिलेंगे उसके आपको। लेकिन अगर आप उसको 2 घंटे के पहले अगर आप ले रहे हैं ग्रीन टी, तो वही है, ना तो आपके खाने के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना वो फूड डाइजेस्ट होगा। किस टाइम एक तो और बात बताना भूल गई मैम, कि जो ऑयल है, जब हम लोग कोई भी ऑयल परचेस करने जाते हैं या हम आउटसाइड फूड जिनमें पीछे लेबल होता है कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट है ना, आप उस समय उन लेबल्स को पढ़िएगा। अगर उसमें ट्रांस फैट, एडेड शुगर, एडेड सॉल्ट एंड ट्रांस फैट,
ट्रांस फैट 0.1% भी अगर लिखा हुआ है, दैट इज साइलेंट किलर। ठीक है, ट्रांस फैट जो होता है वो एकदम ही मतलब पॉइजन है, आप समझ लीजिए। वो कैसे किन से मिल के बना होता है ये मैं इतना भी बोल नहीं पाऊंगी आपको, लेकिन ट्रांस फैट अगर कोई भी लेवल में, तो आप देखेंगे आप अपनी चिप्स खरीद रहे हैं, आप चिप्स खरीद रहे हैं बच्चों के लिए, आप कुरकुरे खरीद के दे रहे हैं, सबके पीछे लेवल होता है न्यूट्रिएंट्स का। Right, आप उसको right. पढ़िए, आप उसको पढ़िए, और ट्रांस फैट जहां भी लिखा हुआ है वो हमको परचेज नहीं करना है। We should not purchase anywhere Trans- where it is written trans fat. Okay. ट्रांस फैट, ठीक है। तो जो हमारी बिस्किट्स की बात कर रहे थे, बिस्किट क्या चीज से बना होता है? ऑल पर्पस फ्लोर, मैदा, Yes, मैदा। उसमें जो घी या ऑयल यूज होता है ना मैम, पाम ऑयल। आपकी जो ब्रेड होती है ना, आप उसमें देखिएगा पाम ऑयल लिखा हुआ होता है। तो इसीलिए मैम आउटसाइड फूड, हम लोग जो ऑयली फूड, अभी जो मिथ है ना, ऑयल खाओ ही मत, नहीं खाना है हमको, राइट, राइट क्वांटिटी में खाना है, कोल्ड प्रेस ऑयल खाना है। अगर आप ऑयल घर का बना हुआ आप कोई भी डीप फ्राई करके खा रहे हो वीक में 3 to 4 डेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप 4 डेज की जगह एक चीज, एक आइटम, आप एक सिंघाड़ा, समोसा आप बाहर से कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो बराबर होता है। ठीक है, आपको आउटसाइड फूड डीप फ्राइड जो है वो अवॉइड करने हैं। आपको बिस्किट्स अवॉइड करना है, क्योंकि बिस्किट्स में तो कुछ भी नहीं होता। तो आपको क्या खाना है ऑफिस में? अगर आप ऑफिस में हैं तो आप ऐसा घर से क्या बना के ले जाएं जो आप खा सकते हैं। इनके आइटम्स हैं, आप रोस्टेड चना ले सकते हैं, आप वो रोस्टेड मार्केट चना। में अवेलेबल है। आप पीनट चाट ले सकते हैं, आप थोड़ा सा लेमन डाल के, ग्रीन चिली डाल के वो खा सकते हैं। आप पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो चाट ले सकते हैं, आप स्वीट पोटैटो चाट खा सकते हैं। कॉर्न मार्केट में अवेलेबल है, आप नीचे से कॉर्न मंगा के खा सकते हैं। ब्लैक ग्राम चना जो होता है उसकी चाट आप खा सकते हैं। आप मुड़ी खा सकते हैं, ड्राइड पोहा जो आता है आप वो खा सकते हैं। तो ये आप अपने बैग में रखिए, आप संडेज को टाइम दीजिए ये सब प्रिपेयर करने के लिए। आप एक लिस्ट बनाइए, आप ये अपने पर्स में हमेशा रखिए, आप आराम से खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जब ये पता चलेगा कि मैं जो खा रही हूँ वो मेरे को कैसे, मेरे को बेनिफिट कर रहा है, तो आपकी अपने आप आदत छूट जाएगी बाहर के फूड की। और कभी कभार खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है, कभी कभार खाइए, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं। सेकेंड बात मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमको मील स्किप नहीं करना है। We ठीक है, cannot skip meals. यस, क्यों नहीं स्किप करना है मैम? क्यों, क्या होता है, आप 10 बजे खाना खा रहे हो, फिर आप 1 बजे खा रहे हो, 4 बजे आप स्नैक्स ले रहे हो, 8 बजे आप डिनर ले रहे हो, ठीक है। लेकिन वर्किंग वुमेन है, चाहे बच्चे हैं, ट्यूशंस हैं, आप बहुत काम कर रहे हैं, आपको अचानक कोई मीटिंग आ गई आपकी, आप क्या करोगे? आप तो स्किप कर दोगे मील, रुको रुको भैया बाद में खाते हैं, पहले तो ये काम जरूरी है। उससे क्या होता है मैम, हमारे बॉडी में बहुत सारे ये जो जूस होते हैं ना, जो फूड को पचाते हैं, जो डाइजेस्ट करते हैं, ये जूस तो अपने टाइम से वहां बन के रहते हैं। जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, आपको रीजन पता है गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों होता है? No, really not. But I had an No. operation, I और know. आप डॉक्टर को पूछेंगे ना, आपका ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर का, Yes, yes, I had. आप अपने डॉक्टर से पूछेगा कि सर मेरी लाइफस्टाइल में क्या प्रॉब्लम थी जो मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, मेरे स्टोन क्यों हुआ? उनको नहीं मालूम है, उनको नहीं पता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में लीवर से एक जूस आता है जिसको बाइल जूस बोलते हैं, ठीक है। Yeah, bile juice. बाइल जूस होता है, वो हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करता है। बहुत सारे जूस है जो खाना, बाकी जो अदर फूड है उसको डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन जो हम फैट्स खाते हैं, आप तो जानते हैं पानी में अगर हम फैट्स डालेंगे तो वो उसमें मिलता नहीं है, Right, right, right. तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस जो होता है वो काम में आता है। तो Okay. लीवर ने बाइल जूस बना के गॉल ब्लैडर में डाल दिया, ठीक है। Okay. तो आप बहुत लंबे टाइम तक आप खा ही नहीं रहे हो, तो वो जो जूस है वो वहां कॉन्सेंट्रेट होने लगता है हमारे गॉल ब्लैडर में, वो वहीं पड़े क्योंकि वो बहुत सारी चीजों से मिलके, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उनसे मिलके बना होता है बाइल जूस भी। जब वो पड़े रहता है वहां पे, आप मील स्किप किए जा रहे हैं, आप फैट्स भी नहीं खा रहे हैं, आप पानी पी के, जूस पी के, आप कुछ भी आप टाइम पास कर रहे हैं, उससे क्या होता है मैम, वहां पड़े वो उससे Stone स्टोन बन जाता है. It becomes a stone. आपकी थी ऐसी लाइफस्टाइल, आपने बहुत मील स्किप किया, आप लेट खाते थे? Yeah, because sometimes what used to happen is, working, doing notebook checking, and lot of things. Teachers need to do that. Years after years, and the notebook piles up, and then when you keep on checking and all that, you forget having You forget, meals also properly. And this is basically people who are actually having tedious kind of jobs, which you need lot of enforcing, and you need to sit down and work. So when you need to sit down and work continuously, you forget to eat. ठीक है, And then that is the reason I could understand what is the reason behind having stones and all these things. So people say that you should drink a lot of water.
And I have heard, I don't know whether it's a myth or not, but people Water. say that if you're not drinking proper water, you have these stones and all these things. किडनी स्टोन मैम, किडनी स्टोन। Yes. जो वाटर That is वाली one प्रॉब्लम है वो reason. किडनी स्टोन की है, वो किडनीज में स्टोन बनते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन उसका रीजन नहीं है। अच्छा, got गॉल it. ब्लैडर में This is स्टोन also तभी one. होगा क्योंकि जो फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस जो आपके गॉल ब्लैडर में लिवर ने बना के रखा है, अगर वो यूज नहीं होगा वो क्योंकि जैसे आप खाना स्टार्ट करते हैं ना, आप जैसे ही खाना, आपका खाना जब इंटेस्टाइन में जाता है तो वो जूस वहां से निकल के इंटेस्टाइन में चला जाता है फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर वो यूज ही नहीं हो रहा है तो वो वहां पड़ा है। तो एक दिन में नहीं होती ये प्रॉब्लम, लेकिन जब आपको इसकी आदत हो जाती है ना कि आपको खाना खाना ही नहीं है, तो मैम मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट के बाद एक पूरा प्लेट आपको लंच लेना ही लेना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, आप इतना सा खा लीजिए, Right. ठीक है। आप कोई फ्रूट खा लीजिए। आप क्या है, जैसे मैं ये बता रही हूँ, चना है, रोस्टेड चना है, पोहा है, आपने जो भी अपने पर्स में रखा है, आप थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, आप 2 पीस कैश्यू ही खा लीजिए, तो उसको क्या है, काम मिल जाएगा, उस जूस को काम मिल जाएगा, वो वहां से निकल गया, उसकी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? तो ये जरूरी नहीं है कि आप leave our stomach empty. Basically, empty stomach is dangerous. ठीक है। Got it. हाँ. अब है हमको वेट लॉस करना है, हमारे में से बहुत लोगों को वेट लॉस करना है। कैसे वेट लॉस करना है? नहीं भाई, हम तो रोटी चपाती तो हम 3 ही खाएंगे, खाना तो है हम लोग को, हम लोग भूखे भी नहीं उठ सकते, ठीक है। तो इसका देखिए मैम एक ही उपाय है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि वेजिटेबल एंड फ्रूट प्लेट 1 प्लेट 2, आपके हर मील में प्लेट 1 प्लेट 2 होनी चाहिए। मॉर्निंग में आप फ्रूट्स खाइए, फिर आप ब्रेकफास्ट लीजिए। लंच में आप पहले रॉ वेजिटेबल्स खाइए, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हो सकते हैं जो आपको भाई, कुकुम्बर है, टोमेटो है, बेल पेपर्स हैं, कैरेट हैं, आपको जो पसंद है। उसके बाद आप अपना मील लीजिए, तो ऑटोमेटिकली अगर आप 4 या 5 टाइप के सैलेड खा रहे हैं तो आपको क्या है, अब ऑफिस में है आप, ऑफिस में आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कुकुम्बर एंड टोमेटो ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि कुकुम्बर को आप उसके छिलके के समेत आप खा सकते, आपको पील करने की जरूरत नहीं है। Okay. क्यूकुम्बर आप उसके Many people actually have seen peeling the cucumber and having, but then you can have it raw also. Just Raw wash it also. off and you आप can अच्छे have से it. वॉश कर लीजिए उसको और आप खा सकते। तो ऑफिस में आप कुकुम्बर और आप टोमेटो खाइए, Tomato. घर पे जब आप हैं तो आप बेल पेपर्स, कैरेट, आपको और जो भी आप ले सकते हैं। इसका क्या रीजन है मैम? एक तो ये फाइबर्स है, ठीक है। अच्छा, हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं ना, जो हमको ये बताते हैं कि यू आर हंग्री, अब आप खाना खाओ, ये हार्मोन रिलीज होते हैं, तो हमको पता चलता है हमको फूड चाहिए, अभी हमारा टाइम हो गया, हमको फूड चाहिए, ठीक है। और ऑटोमेटिकली आफ्टर 20 मिनट्स फिर हमारे एक और हार्मोन रिलीज होता है जो आपको ये बताता है अब आपका पेट भर गया, Okay. ठीक है। तो क्या होता है, जब हम सैलेड खा रहे हैं, उसको खाने में टाइम लगा मैम 10 मिनट्स तो लगेगा, Right, 10 minutes और आप to खा रहे हैं, हाँ। फिर जब आपका फूड आता है ना, जब आप रोटी खाना स्टार्ट करते हैं, आप राइस खाना स्टार्ट करते हैं, चपाती खाना स्टार्ट करते हैं, तब तक 15 to 18 मिनट्स हो जाते हैं, तो वो हार्मोन हमको बताता है आपका स्टमक इज फुल। तो क्या होता है ना, उससे आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने फुल खाना खा लिया है, लेकिन आपके फाइबर भी गया, आपकी चपाती की क्वांटिटी ऐसे ही कम हो गई। दूसरी बात, आपने डो बनाया कैसे? आपने वेजिटेबल पल्प का यूज किया, जो मैंने वेजिटेबल बी में बताया कि Right. पल्प, तो वहां आपकी क्वांटिटी कम हो गई, तो आपका पेट भी पूरा भर रहा है और आपकी क्वांटिटीज आपने स्मार्टली उसको बनाया, अब ऑलरेडी आपका वेट लॉस होना ही है। So you prefer having salads before फूड, यस, before your meal, so Before that your- when you start eating, your stomach is already full. So you eat a little less than what you were generally trying to eat. So one question, Pooja, yes, what about rice and chapati? Like, is it, many people say that rice is equal to chapati, or is it that having rice puts on your weight? What कोई is it? वेट पुट ऑन नहीं होता मैम, कोई वेट पुट ऑन नहीं होता। आप देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपके प्लेट में सब कुछ होना चाहिए, पानी भी अगर आप ज्यादा पी रहे हैं वो भी खराब है। तो आप राइस सोचेंगे मैं इतना खा लूं, मैं क्वांटिटी नहीं मेंटेन करूं, तो वो आपके लिए खराब है। बट आप एक राइट अमाउंट में खाते हैं, आपका कोई वेट पुट ऑन नहीं होगा। आप उसके पहले सैलेड लीजिए, आपका कोई वेट पुट ऑन नहीं होगा। आप एक बार, मैंने जितनी भी बात आज बोल रही है, आप 15 डेज के लिए ट्राई करो, ओनली 15 डेज आप इसको फॉलो करो। आप पहला दिन वेट देख लेना, आप बाद में वेट देख लेना, Got it. कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। आप आराम से राइस खाइए, लेकिन आप उसके पहले आपको सैलेड खाना है। एक रीजन और है सैलेड बिफोर खाने का, बीच में क्यों नहीं खाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, ये सब से बने हुए जो फूड होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में 2 आवर्स लगते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनको डाइजेस्ट होने में सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने पहले खाना खा लिया,
फिर हम लोग सैलेड की प्लेट मंगा रहे हैं, हम लोग भूल गए, फिर हम लोग सैलेड खा रहे हैं। तो हमारा जो स्टमक में हमारा जो खाना है वो तो 2 आवर्स लगेगा डाइजेस्ट होने में, पर हम उसके ऊपर से जो वेजिटेबल खा लिए वो तो डाइजेस्ट हो गया 10 मिनट्स में, पर उसको तो Right. निकलने की स्पेस नहीं मिल रही है। तो Right, फिर right. क्या होगा, एसिडिटी होगी, गैस फॉर्म होगा और वो सड़ जाएगा, उसका आपको कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। Got it. समझ रहे हैं? तो इसका 2 रीजन है, क्योंकि एक फाइबर आपका इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा, आपका स्टमक फुल करेगा, इसलिए हमको मील के पहले खाना है, और हमको इसलिए भी खाना है ताकि वो आराम से डाइजेस्ट हो जाए, Digest, हाँ. उसको टाइम मिले और उसको स्पेस मिले, डाइजेस्ट होके निकल जाए। ये 2 Got रीजन। it, got it, got it. So then this is really helpful. So next time when I carry my tiffin also, that means I'll have my salads first and then I'll try to have my next little bit meal so that my stomach is full. I'm getting a lot of fiber in and yes, weight management is one big thing. तो मैम मैंने ओवरऑल मैंने सब कुछ शायद मैंने कवर कर लिया है। अब Definitely, आपके जो definitely you क्वेश्चंस have. हैं आप बोलिए, मेरे ख्याल से तो सब कवर्ड है। Well, कोई भी I क्वेश्चन है have किसी के some भी तो questions. Yeah, Yes, I ma'am. have some questions which I think many of us would like to know, and I know definitely you will be having idea. मुझे पता है definitely आपके पास ये answers होंगे. Let us have a quick round of question session. Um, what are some quick and easy meal options for working women? मैम ये तो मैंने बताया अभी आपको, जैसे फ्रूट्स हैं, रॉ Fruits है. वेजिटेबल्स हैं, चाट है, ब्लैक ग्राम चाट है, एनर्जी बार्स हैं, आप क्वांटी ये ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, जैसे सत्तू, सत्तू वाटर प्रोटीन Right, पूरा right, पावर हाउस right. है। आप सत्तू वाटर भी, आप ड्राई सत्तू वाटर, उसमें चीनी, आप सॉल्ट, इसको ऐड करके आप अपने ऑफिस में वर्किंग प्लेस में रखिए, ठीक है। Okay. आप सत्तू के पाउडर में आप थोड़ा सॉल्ट ऐड कर लीजिए, आप चीनी ऐड कर लीजिए, रोस्टेड क्यूमिन जो होते हैं, हाँ रोस्टेड हाँ क्यूमिन जो होते हैं, हाँ आप वो ऐड करके उसको मिक्स करके आप अपने ऑफिस में रखिए। आपको जब भूख लग रही है, आपको टाइम नहीं है, आपने एक ग्लास लिया, उसमें उसको मिक्स किया, पानी के साथ आपने पी लिया, एक पूरा मील प्रोटीन, हाई प्रोटीन है मैम। जितने लोग जिम जाते हैं, जिनको हाँ. प्रोटीन पाउडर दिया जा रहा है, अगर आप सोच लीजिए, आप 2000 खर्चा करके आप जो प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, उसकी जगह आप एक बार दिन में एक बार ये ले लें, तो आपका कितना फुल हो जाएगा पेट। आप एक मील स्किप कर सकते हैं अगर आप ये ले रहे हैं। Actually, this is Sattu had really worked for me, and I remember, having this in the morning. I used to put a little bit of Sattu in the water, and then I used to put coriander लेमन, leaves, हाँ, chopped कोरिएंडर coriander लीव्स, leaves, and लेमन, अनियन, lemon बट and वो तो all आप घर that. से कर सकते हो। अगर आप घर पे हो तो आप कुछ भी ऐड कीजिए, फिर तो Yeah, मजे से yeah. आप लीजिए। बट आप ऑफिस में हैं तो आप एक बॉक्स में लाके रखिए, आप तुरंत तुरंत उसको मिक्स कीजिए और आप लीजिए उसको। Right, right. Wonderful. Okay, then suppose what are some healthy options? Okay, this we have discussed. How I to have discussed all the questions of yours. Yeah, actually, the questions which I had prepared, you have answered most of it. One question is there. How does nutrition impact women's mental health, including anxiety and depression? मैम एंजाइटी डिप्रेशन कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जब बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो आप में तो एनर्जी हर समय है। हम लोग Right. एंजाइटी डिप्रेशन में क्यों आते हैं? क्योंकि हम दिन भर काम कर रहे हैं, हम थक गए, लेकिन अब हमको घर जाके क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है, हस्बैंड को देखना है, True, true. भले ही आपने कुक रखा हुआ है, लेकिन उसको काम भी तो बताना है। क्या Definitely. चीज मार्केट से सामान लाना है, वो तो आपका हेडेक है। लेकिन अगर आपके अंदर एनर्जी है, आप में कोई दिक्कत, आपको कोई टायर्डनेस नहीं फील हो रहा है, तो आपको एंजाइटी आएगी कहाँ से? बिल्कुल. पहली बात। दूसरी बात है मैम, मैं एक कैमोमाइल टी प्रेफर करती हूँ इसके लिए, कैमोमाइल टी, ठीक है। Okay. ये टी मार्केट में अवेलेबल है, जिनको ज्यादा एंजाइटी या फिर स्लीप की प्रॉब्लम है। ऐसे अगर आप 15 डेज अगर आप ये बैलेंस डाइट समझ रहे हैं, तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम 15 डेज में आपकी सॉल्व हो जाएगी। बट जिनको भी ये प्रॉब्लम है एंजाइटी की, आप एक बार कैमोमाइल टी रात में सोते समय आप ट्राई कीजिए, आपको उससे ये बहुत अच्छा टी है, हर्बल टी है, ये आपको बहुत फायदा देगा। Okay, this is one big help. If anyone is having any depression problems, then you can actually have this, will help you really. So, yeah, if anyone has any questions, you can raise your hand and Pooja would like to, she'll help you out. देखिए, मैंने जितने भी आइटम्स बताए हैं ना, वो बैलेंस डाइट का एक पार्ट है, ठीक है। वो बैलेंस डाइट हमको सबको लेना है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, प्रोटीन, कार्ब्स सब लेना है। लेकिन जिनको डायबिटीज है,
जिनको थायराइड है, जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, उनको वो क्वांटिटी कम ज्यादा में लेना होता है। उनके लिए कोई चीज मना होता है, कोई चीज उनको वो चीज ज्यादा कंज्यूम करनी पड़ती है। ठीक है, तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अगर किसी की कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डिस्कस करके खाएं कोई भी चीज, और रील्स को देख के कोई भी चीज पे ब्लाइंडली मत फेथ कीजिए, सिर्फ रील्स देखे, क्योंकि वो ये बताएंगे कि जीरा आपके लिए बहुत अच्छा है, जीरा आपके लिए, जैसे थायराइड में क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। अभी वो बहुत चला हुआ है, ब्रोकली ब्रोकली ब्रोकली, अरे वो लेकिन कब नहीं खाना है, थायराइड में ब्रोकली नहीं खाना है। ठीक है, आप वो Right, देख right. के आप बहुत सारे आपने सूप बना रहे हैं, आप सुबह सूप बना रहे हैं, आप शाम को सूप बना रहे हैं, पता चलेगा आपकी तबीयत और खराब हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कौन सा फूड कौन सी डिजीज में नहीं खाना है। Understanding. If anyone has Yes. any sort of queries, you Yes, can Suman. raise. You can Yes, just ma'am. raise your hand, To- and we'll be able to take your question. Ma'am, for the betterment of menstrual cycle, what type of food we can have add into our meals? Pooja, your mic is off. Yeah. पीसीओएस की प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं मैम, नो मैम. पीसीओएस खाली आपके मेंस्ट्रुएशन टाइम पे नहीं आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम है? Yes मैम. आपको जो सीड साइकिल बताया है ना, आप सीड्स Amount- लेना स्टार्ट कीजिए। Amount आप बैलेंस डाइट लीजिए। जितना मैं आपको जो चार्ट दिखाई, आप सारी चीजें लेते हो, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स खाते हो आप yes, डेली? ma'am. डेली Yes, खाते हो? सीड्स खाते हो आप डेली? It's no ma'am. नहीं Seeds I खाते haven't. ना? नट्स डेली खाते हो आप? Nuts, yes. Nuts and fruits I used to have. लेकिन आपको सीड्स भी खाना है। सीड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। खाली सीड साइकिल को फॉलो करके, जैसे अभी तो मैंने 5-6 सीड्स बताया ना, रोस्ट करके आप एक साथ रख लीजिए। इस साइकिल को ठीक करने के लिए इसमें से 2 सीड ऐसी हैं जो आप 15 डेज खाइए, 2 सीड को आप बाद के 15 डेज खाइए, पूरी पीसीओएस ठीक हो जाता है इससे। ठीक है, आप इसको फॉलो कीजिए। और जब आपको पीरियड्स आए ना, आप गर्म पानी पीने की आदत डालिए, तो वो क्लीन होता है उससे। ठीक है, आप सोया के प्रोडक्ट्स खाते हैं? Soya only मैम, जो सोया चंक्स सोया आता है. चंक्स आता है वो आप Soya खाइए। milk also. हाँ, आप लेते हो? Yes मैम. आप जब आपके पीरियड्स के टाइम आते हैं उस समय आप ज्यादा ये लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन प्लीज ये सब नहीं फॉलो करना। जिनको थायराइड होता है उनको सोया से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं। Okay. तो People who are जिनको कोई having डिजीज thyroid, है उनके लिए इम्पोर्टेंस, soya. यस, जिनको थायराइड है उनको सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाना, उनको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स नहीं खाना है। तो आप सारे चीज नहीं फॉलो करना। जो यहाँ पे हेल्दी, मतलब जिनको खाली थकान की प्रॉब्लम है, जो थक रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, जिनको वो ये हेल्दी चार्ट फॉलो करना है, बस किस अमाउंट में वो आपको मेरे से अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। वो मैं कैसे समझाऊं कि आपकी हाइट क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, मॉडरेट है, कि उसके ऊपर डिपेंड करता है। Right. Okay, Pooja, thank you so much. You know, Pooja has shared a wonderful diet chart, which I will be sharing with y'all. The way how y'all have joined in over mail and WhatsApp, how y'all have got the IDs and everything on similar basis, the same, the diet chart will be given to y'all so that y'all can follow. Her number will also be provided to y'all. If in case y'all have any sort of issues, y'all can get in touch with her. लास्ट एक चीज और बताऊं आप लोग को, Yes, definitely. अगर हम हेल्दी Love to फूड hear. फॉलो करते हैं ना, अगर हम हेल्दी फूड फॉलो करते हैं तो हमारी स्किन भी अच्छी होती है, हम अपने एज से छोटे भी लगते हैं। ठीक है, बताओ मेरी एज गेस करो कोई भी। Okay, that's how much? Okay, come on, y'all can write in the गेस chat. करो if आप y'all लोग। want. लेकिन मैं ये भी बता दूं, मेरे को ये फॉलो करते हुए सिर्फ 1 ईयर हुआ है। मैंने अभी रिसेंटली इसकी स्टडीज की है। सिर्फ 1 ईयर से मैं मतलब ये फॉलो कर रही हूँ हेल्दी फूड। ठीक है, तो 40 Okay, आया so the answers are मैम, coming. 40 आया, It's like 40 यस 40 आया। और कोई? Oh, come on, the guesses. 44। 44. अच्छा, Don't put it high now. Purposely, if she's asking y'all, don't put it high. मैम 50। I Really? will complete my 50 this year. 50 अब stop हो जाओ। Not 35, yes. Wonderful. Can we all clap for Pooja for a Thank you. wonderful session? We really had a great session, Pooja. Thank you so much. We have learned so much from whatever information you have given. It is really, really important for us to all take care of our health, and not only to be slim or lose weight, but to have a healthy body, healthy mind. So thank you everyone for joining in. We had a great webinar like this. We will be having more and more webinars where you all can join, have lots of information, and we would like again Pooja to have again where she will be speaking on other topics. Right, Pooja? Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you everyone for joining. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.